तो बता रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all of you. A very warm welcome in strategic management class. आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एग्जाम होंगे मोस्ट प्रॉब्ली दैट विल अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मोर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने जो भी प्रिपरेशन करें उसे हम इस तरीके से प्रिपेयर करें कि उसमें अगर कोई कॉन्सेप्चुअल बात हमसे पूछी जाती है तो हम उसे अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहाँ पे हम ये फोकस करते हैं और जहाँ पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो लर्निंग को इंक्रीज करें, चीज़ों को सीखें, अपनी जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर आए। ऑर्गेनाइजेशन पर भी यही चीज़ें इक्वली इम्प्लीमेंटेड हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो चाहती हैं कि वो अपनी ग्रे एरियाज से सीखें, अपनी फेलियर से सीखें और फ्यूचर चैलेंजेस का सामना कर सकें। ठीक है जी, तो बिफोर दैट कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं और किस तरीके से एक आम कंपनी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, आइए एक छोटी सी वीडियो में आपको देखता हूँ। मैं आप उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पेपर और पेन प्लीज संभाल के रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव चीजें जो है वो आएंगी। तो प्लीज आप उससे जो है वो नोट डाउन कीजिएगा बुलेट की फॉर्म में। मैं एक वीडियो आपके सामने जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपने देखनी है। Open feedback to see problems. A learning organization encourages personal mastery and cultivates open feedback to see problems and opportunities on all levels. Some argue that learning organizations attract and retain more talents. Others say that there is a competitive advantage for an organization whose people learn faster than the people of other organizations. Here are 6 characteristics most have in common. They cherish an open culture. Learning organizations encourage everyone to share information, admit to mistakes, and practice giving and taking constructive criticism. Once the problem is found, they try to understand its root cause and fix it. To achieve such a culture, walls are removed, information is shared, and leaders show their human sides. They design and implement feedback loops. Some establish 360-degree surveys in which people assess themselves, their peers, and their bosses. Employees at 5-star hotels ask guests for their opinions. Top schools may videotape teachers so they can later study themselves. Some even make feedback a team effort. Before any new project, they all get together to kick things off. After the project, they meet again to share and reflect on what has happened. They promote personal mastery. Employees try to achieve personal mastery in their fields. Once they become experts, they feel proud of their work, they are motivated intrinsically, and they can create positive change wherever they are. For example, a cleaner might come up with an idea on how to save water, and an accountant on how to save bank fees. The job of the boss is to connect all experts and give directions. They plan for intelligent fast failure. When they build something new, they don't spend time to make assumptions on paper. Instead, they create what's called minimum viable product, a simple prototype with only the core functions. This is then presented to users as early as possible to test what they think. Because it is imperfect, even friends give their honest opinions. The goal? Fail fast, but collect intelligent information so you can improve while going forward. They steal best practices. Picasso apparently said that good artists borrow, great artists steal. Learning organizations study others, steal best practices, and then implement them fast. The newspaper The Economist took advice from George Orwell. Its editors never use jargon if everyday English works. Printing manufacturers stole the razor and blades business model from Gillette, selling printers cheap but ink expensive. They cultivate a common vision. A learning organization prospers when all members share a common vision.
That way, employees can understand the importance of their role, connect the dots, and develop systems thinking. When goals are clear, regulations can be reduced and people can create their own personal benchmarks of success. This reduces bureaucracy, authority, and corruption. Salesman and author Zig Ziglar once wrote, "The only thing worse than training people and having them leave is not training them and having them stay." At a learning organization, education happens as a side product of working together, as everybody learns from each other to adapt to whatever the future might bring. If you like our videos and want to support our channel, visit us at patreon.com/sprouts and see if you want to donate. हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, क्या फायदा होता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का? आइए हम डिस्कस करते हैं कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं और कोई भी कंपनी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनना चाहती है। देखिए जी, अगर आप बात करते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऐसी कौन सी कंपनी होती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को हम इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। दोज कंपनीज हु आर कीप वर्किंग फॉर देयर इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हर साल कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि वेबिनार अटेंड कर लें, कोई सेमिनार नहीं हो रहा हो, हमें पता चले तो हम उसको वहां पे चले जाएं, या कोई कुछ लोग होते हैं जो वीडियोस देख रहे होते हैं। अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है यार, कि सीखें चीज़ों को। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो इसी तरीके से काफ़ी अच्छी स्किल्स उनके पास होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लर्निंग कर्व को बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। और बहुत से ऐसे हमारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, हमारे सीनियर्स भी होते हैं, इवन समटाइम्स हम खुद भी होते हैं, जो कि नई चीज़ को सीखने के हवाले से पहले से ही गिव अप कर देते हैं कि नहीं यार, ये तो मैं नहीं सीख सकूंगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से कोशिश की जाती है कि जहां हम जब भी अपनी कंपनी में डिसीजन मेकिंग करें, वहां पर अपने आप को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मोटिवेट करें। किस तरीके से? 5 चीजें होती हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, लर्निंग फ्रेमवर्क में। नंबर 1, कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर। कोलैबोरेटिव लर्निंग कल्चर का मतलब क्या है? कंपनीज में जब भी कोई मिस्टेक्स हों, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो, तो कंपनी उसे एज उसकी प्रॉपर रूट कॉज करती है, यानी गलती को हासिल समझने के लिए कि वजह क्या थी। कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दे तो उस पर रूट कॉज होता है, किसी ने कोई मिस्टेक कर दी तो उस पर रूट कॉज होता है, कोई मशीन खराब हो गई तो उस पर रूट कॉज होता है। वजह क्या होती है रूट कॉज का? कि पता चले कि गलती कहाँ थी, किससे गलती हुई, और गलती को रिपीट नहीं किया जाए। सेकंड है लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट, के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको चीजें सीखने के हवाले से मोटिवेट किया जा सके। और मोटिवेट करने के डिफरेंट तरीकाकार हैं कि हम उन्हें कोई सर्टिफिकेट दें ट्रेनिंग का, या अगर हम उनको कोई ट्रेनिंग कराएं तो उनको कोई इस तरह की कोई बेनिफिट दे दें, मॉनेटरी बेनिफिट पैसों के हवाले से। आइए बात करते हैं कि कंपनीज एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग फ्रेमवर्क होता क्या है। हो सकता है कि पेपर में आपसे पूछा जाए कि किसी कंपनी का नाम लिया जाए, XYZ कंपनी आर वांट टू बिकम अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फंक्शन एंड व्हाट आर द स्टेप दे नीड टू टेक। कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया जाए कि ये आपसे, ये अक्सर लास्ट टाइम ये सवाल बहुत, इस तरह के सवाल बहुत आए कि पाकिस्तान के सिनेरियो को सामने रखते हुए बताइए कि क्या कोई कंपनी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है या नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये चीज माइंडसेट में जरूर रखिएगा। ये चीज आपको समटाइम्स गूगल पे भी नहीं मिलती। आपने अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो आप उसके हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे। सबसे पहले कंपनीज अगर जब अपने आप को जिसे कहते हैं तैयार करती हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनने में, क्या करते हैं? सबसे पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब हर चीज जो है वो टॉप मैनेजमेंट पे जाके कंट्रोल हो रही हो, और डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि आपने डिसीजन मेकिंग फैसिलिटी या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डाउन दी ऑर्डर सेलेक्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने मुल्क का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे ऊपर होती है हमारी नेशनल असेंबली,
फिर सेनेट, फिर हर सूबे की होती है प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, और उसके बाद हर शहर की होती है सिटी गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग, अगर हर चीज, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई छोटा सा भी काम है और मैं ये फैसला करूंगा यार नेशनल असेंबली में ये बात डिस्कस होनी चाहिए, तो वो गलत है। हर फ्रेमवर्क पे डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन है, ठीक है। अगर कोई चीज शहर की हद तक है तो सिटी गवर्नमेंट उसे हल करेगी, अगर प्रोविंस की हद तक है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, और अगर नेशनल लेवल पे है तो उसे नेशनल लेवल पे। अगर हम अमेरिका का स्ट्रक्चर उठाएंगे ना तो वो देखेंगे कि वो क्या करते हैं, हर चीज उन्होंने डिसेंट्रलाइज की हुई है, कि यानी अथॉरिटी उन्होंने लोगों को दी हुई है, टाउन्स बने हुए हैं, ठीक है, यूनियन काउंसिल्स बनी हुई है, और वो वहां पर एरियाज बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। होता क्या है कि इससे आपको फायदा, आपको कंपनी को क्या होता है, फायदा ये होता है कि जो लोगों का किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हासिल करने के लिए जो टाइम है वो जल्दी हो जाता है, मतलब जल्दी आप सीख लेते हो, टाइम जो है कम लगता है, ठीक है। इसके अलावा एम्बेडेड एचआर ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जरिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए तो कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट फौरन उसको उसके हवाले से ट्रेनिंग कराता है अपने पार्टिसिपेंट्स की, ठीक है। कोशिश करता है कि उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए लर्निंग ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए जो है वो किसी एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, और कोशिश होती है उनकी कि एक्सपर्ट उनको जो सिखाए उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनने का फायदा कंपनी को सबसे ज्यादा ये होता है कि वो हर चीज में कॉम्पिटिटिव एज ले जाते हैं। कंपनी कंपनी जो है अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाती है। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में फार्मा कंपनीज रिसर्च पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए इस साल। रिसर्च पे क्यों खर्च किए पैसे? क्योंकि आपको पता है इस साल जो 2020 का साल चल रहा है, जो कि अब इख्तिताम पजीर भी है, हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ी इमरजेंसी आई, और उस इमरजेंसी का नाम था कोविड-19। हेल्थ इश्यूज को या हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने हर वो इक्विपमेंट, हर वो यू कैन सी दैट अ टैबलेट और सस्पेंशन, हर वो चीज, हर वो दवाई और हर वो मेडिकल फैसिलिटी जो कि अल्टीमेटली कोविड के हवाले से इंपॉर्टेंट थी, उसमें इंक्रीज किया। फॉर एग्जाम्पल, खुद पाकिस्तान में कभी भी वेंटिलेटर नहीं बनते थे। वेंटिलेटर का पता होगा आप लोगों को, ऑक्सीजन वेंटिलेटर, वो कभी भी नहीं बनते थे। लेकिन इस दौरान, और आपको पता है वेंटिलेटर करोड़ों रुपए का आता है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है वेंटिलेटर्स पे। तो पाकिस्तान के एक ऑर्गेनाइजेशन ने वेंटिलेटर भी बनाया, ठीक है। ना सिर्फ बनाया बल्कि उसकी इफेक्टिविटी, उसकी वेरिफिकेशन, वैलिडेशन करवाई, और वो किसी भी तरीके से किसी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर वेंटिलेटर से कम नहीं था, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एजुकेशन से मिसाल दूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन तालीम का कोई रुझान ही नहीं था, मतलब ऑनलाइन कोई कहते थे कि नहीं यार ऑनलाइन हो ही नहीं सकती पढ़ाई। लेकिन अगर उन एजुकेशनल इदारों ने ये सोचा कि भाई अब कुछ नहीं पता कि एजुकेशनल इदारे कब फुली ऑपरेशनल हों फेस टू फेस, तो दे आर ट्राइंग टू ट्रेन देयर टीचर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन टू शिफ्ट द एजुकेशनल सिस्टम फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनुअली टू ऑटोमेशन। यानी आज आप देखें, अगर आप तमाम हालात सही होते तो मैं और आप इस वक्त ये क्लास, जो बड़ा वाला कमरा है बैकेस का, उसमें ले रहे होते, लेकिन आज हम अपने घर पे बैठ के इस क्लास को ले रहे हैं। क्यों? ये क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि हमने टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इफेक्ट किया, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने लोगों को ऑनलाइन पढ़ने, काम करने का बताया कि ऑनलाइन आप किस तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बताते तो सरवाइव नहीं कर सकते थे, सर्वाइवल नहीं था, ठीक है। तो लर्निंग एंड टीचिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन कोर कॉम्पिटेंसी इन्वेंटरी, ये जो वर्ड है ना कॉम्पिटेंसी, ये वर्ड जो है ये अपने अंदर बहुत बड़ी मीनिंग लेके बैठा हुआ है। कॉम्पिटेंसी मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। इसकी मिसाल दूं मैं आप लोगों को? यस सर। यस सर।
चलें ठीक है, मैं अपने आप से मिसाल देता हूँ। आप लोगों के ख्याल में मैं कैसा टीचर हूँ? अच्छा पढ़ाते हो सर अच्छे आप। टीचर सर। ठीक है, और बताइए, और दूसरे इसके अलावा और बताइए, कोई और जवाब दे। समझदार हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है मुझे, या नहीं आता? जी सर। पढ़ाना आता है मुझे, नहीं आता? सर जी सर आता है। पढ़ाना आता है, सेकेंडली आप अगले बंदे के माइंड को समझ रहे होते हैं, हमारे क्वेश्चंस का प्रॉपरली आंसर कर रहे होते हैं, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम आपसे आराम से पूछ भी लेते हैं, हमें उसमें कोई भी डर नहीं होता कि आप आगे से रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और बाकी लोग भी बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या। पढ़ हम ये रहे, याद रखिएगा, कोर कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री। अच्छा जी, इससे मैं रिलेटेड एक मिसाल बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तो ठीक है। आमना का, बाकी अनीस ने बता दिया, हिरा ने बता दिया, बाकी लोग फहीम, काशिफ, इलियास साहब, थोड़ा सा फीडबैक दें मुझे। जैसे कि आपने मुझे कहा कि मैं थोड़ा सा समझदार टीचर हूँ, पढ़ा भी लेता हूँ, लेकिन अगर हम किसी टूर पे मौजूद हूँ फॉर एग्जांपल, और अल्लाह ना करे हमारे किसी टीम मेंबर के साथ कोई इंजरी हो गई, और मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे बैग में जो है वो डाइजेस्टिव इक्विपमेंट रखे हुए हैं, आइए मैं इस बच्चे का, इस लड़की का ऑपरेशन कर देता हूँ, तो डू यू गाइस अलाउ मी टू डू दैट? नो क्यों भाई? नो अभी तो आप कह नो रहे सर, हैं। नो सर। क्यों भाई? इसलिए सर क्योंकि आप सर टीचर हैं, आप सर्जरी नहीं करते, आप डॉक्टर नहीं है। Perfect, perfect. This is what the answer of this particular word competency. ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे को किसी खास कॉम्पिटेंसी को देख के रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे पास चाहिए तो हमारे पास अनीस है, तो अगर कोई भी टास्क आएगा हमें फाइनेंस से रिलेटेड, हम आंखें बंद करके अनीस को वो ईमेल फॉरवर्ड कर देंगे, अनीस ये डेटा है, ये डिसीजन लेना है, इसकी जरा एनालिसिस करके प्रेजेंटेशन दे दो। अगर हायरिंग के हवाले से कोई चीज हमें तंग कर रही है तो हम फौरन आमना को भेज देंगे। ये जो हमने चीजें डेलीगेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये ऑन द बेसिस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री के बेसिस पे कर रहे हैं, कि हमें पता है कि अगर कोई चीज हम किसी चीज की ड्यूटी अगर हम हिरा को देंगे, तो शी हैज द कॉम्पिटेंसी टू डू दैट विद इन द टाइम पीरियड। ठीक है, तो कंपनीज सीखती ही इस वजह से हैं। पुराने जमाने में या ओल्ड स्ट्रक्चर वाइज कंपनी क्या होती थी कि अनीस ही, आज भी कुछ कंपनीज का यही हाल है कि आप पूछेंगे एचआर मैनेजर कौन है, वो बोलेंगे अनीस। आप बोलेंगे एडमिन मैनेजर कौन है, आप बोलेंगे अनीस। तो मैं सोचने पे पूछने में मजबूर हो जाऊंगा कि भाई हर चीज अगर अनीस ने करनी है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो जवाब आता है सर, बाकी लोग कितनी जिम्मेदारी से नहीं करते जितनी जिम्मेदारी से अनीस करते हैं। तो मैं हमेशा जवाब देता हूँ कि इसमें अनीस की क्या गलती है? ये गलती है कि वो हर चीज जिम्मेदारी से करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से होता है, कंपनीज अपने लोगों को डेवलप नहीं कराती। बहुत अच्छी मिसाल उस वीडियो में दी गई कि हम दो तरीका कह रहे हैं, या तो हम लोगों को ट्रेन करें, ठीक है, या फिर उनको अनट्रेन करें और अपने लोग, या तो हम लोगों को ट्रेन करें और फायदा उठाएं, या तो उनको अनट्रेन करें और वो ट्रेनिंग के पैसे बचाएं और उन लेस स्किल वाले लोगों को कंपनी में रखें, जो कि ज्यादा नुकसान का बायस होता है। ठीक है, जब आपके पास कोई खास कॉम्पिटेंसी होगी, फॉर अब बिल्कुल सही कहा हिरा ने कि मेरी जितनी एजुकेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी क्वालिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू एजुकेशन, नॉट मेडिकल सर्जरी। ठीक है, तो मैं उस काम को करने का अहल नहीं हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि भाई मैं डॉक्टर भी हूँ, तो आप लोग फिर तसल्ली का सामना करेंगे, नहीं यार डॉक्टर बोल रहा है। यही वजह है कि कोई और एडवाइस करता है और डॉक्टर एडवाइस करता है, तो हमें उसका, उसकी एक्सेप्टेंस ही अलग होती है नहीं होती। हम जब डॉक्टर हमें कोई कहता है कि यार आपको ऑयली चीजें नहीं खानी, आपको वॉक करनी है, आपको अपनी सोने की टाइमिंग थोड़ा सा स्केड्यूल करना है, ये तमाम चीजें, क्यों हम क्यों हम इस डॉक्टर की हिदायत को इतना सीरियस लेते हैं? डॉक्टर की हिदायत को इस वजह से सीरियस लेते हैं, हमें पता है कि वो जो कह रहा है उसके पीछे कोई ना कोई उसकी लॉजिक है, कोई ना कोई उसकी लॉजिक है, और कोई ना कोई इसके पीछे बात है जो कि हमारे फायदे की है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
जी बिल्कुल इलियास साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। मेरी केमिस्ट्री स्टूडेंट से मैच हो जाती है, इसलिए पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक, मेरी बायोलॉजी भी मैच हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गाइस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम जेडीज भी कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करें या कहीं पे भी कहीं से भी आपको इंटरव्यू की कॉल आए, ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आपकी जेडीज क्या होंगी। ठीक है, यानी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आपने क्या काम करना होगा और क्या काम नहीं करना होगा, उसका नुकसान क्या होता है। वरना नुकसान ये होता है कंपनीज हायर कर लेती हैं और मल्टीपल टास्क आपसे ले रही होती है, मल्टीपल चीजों में आपको इन्वॉल्व कर रही होती है और आपको अल्टीमेटली पता ही नहीं चलता कि भाई आपको सैलरी मिल किस चीज की रही है। ठीक है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करते हैं। अगर कोई चीज में फाइनेंशियल, जैसे मैंने बताया कि लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, उनके मतलब का काम। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अच्छा पढ़ाते हैं या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छा पढ़ाते हैं, आप अकाउंटिंग भी पढ़ाएं, तो क्या मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा? मैं माजरत ही करूंगा उससे कि भाई मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है अकाउंटिंग, तो यह सिनेरियो है, आप दूसरे किसी टीचर से पढ़ लें। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्की। हायरार्की कहते हैं स्ट्रक्चर को, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किससे क्या बात कहेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस ड्रिवन बेस, कि जो भी इंसेंटिव्स होंगे या जो भी आपके आउटकम्स होंगे वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होंगे। अगर इलियास साहब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं या फिर मेरे मुझसे बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, इसका हर किस मतलब ये नहीं होगा कि मैं उनको उनकी प्रमोशन जल्दी कर दूं। ठीक है, फिर कुछ कंपनीज ने एलएमएस बनाया हुआ है, जिस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने भी एलएमएस बनाया ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज ने भी एलएमएस बनाया हुआ है, जिसपे वो ट्रेनिंग्स अपलोड कर रहे होते हैं, केस स्टडीज अपलोड कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपके कॉम्पिटिटर के पास बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो आपसे शेयर होता है कि आप देखें और इसको रिपीट ना करें। ठीक है, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी अगर आपने अपनी कंपनी को, आपने गेज करना है कि आपके दोस्त की कंपनी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, तो आप उससे पहला सवाल करोगे कि आपका सेंट्रलाइज है सिस्टम या डिसेंट्रलाइज है। वो समझेगा ही नहीं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किसे कहते हैं। वो कहेंगे कि अगर आपको कोई चीज चाहिए होती है तो वो आपको लाइन मैनेजर उसकी इजाजत दे देता है, या वो बोलता है मैं पूछ के बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सर, हमारे घरों में भी होता है, मम्मी से पूछते हैं कि मैं पिकनिक पे चला जाऊं, अम्मी कहती है मैं अब्बू से पूछ के बताऊंगी। अब्बू से पूछो, बोलते हैं अम्मी से पूछ के बताऊंगा। तो भाई डिसाइड किसको करना है? और इन सब चीजों में पिकनिक का दिन निकल जाता है और आप अफसुर्दा होकर घर पे बैठे हुए होते हो। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपको पता हो कि डिसीजन होगा कहाँ से, डायरेक्ट उसको अप्रोच करो। ठीक है, सेकंड चीज, आप अपने दोस्त से पूछोगे या उस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री देखोगे और देखोगे क्या एचआर लोगों को ट्रेन करता है। क्या कोई नई, जब फैक्ट्री नई खुलती है या फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, न्यू हायर ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग होती है। न्यू हायर ट्रेनिंग किसे कहते हैं? जब भी आप किसी कंपनी का हिस्सा बनते हैं, वहां पे आपको न्यू हायर ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज दी जाती है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेंगे वो क्या करती है, उसका काम क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, और उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग, क्या ऑर्गेनाइजेशन खुद सीखती है चीजों को। ठीक है, कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कंपनीज में लैब्स होती है ना, जिस कंपनीज में वहां पर एक्सपर्ट की जरूरत होती है। कंपनीज में अकाउंटेंट में एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, सीएफओ वगैरह रखते हैं लोग, एसीसी वाले लोग रखते हैं। जहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है, प्रोजेक्ट लेती है, वहां पे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रखते हैं। तो ये चीजें, फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हायरार्की वाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। सोल्यूशन क्या है? टॉपिकल सोल्यूशन, कस्टम सोल्यूशन, डिलीवरी, परफॉर्मेंस, एजिलिटी, ये सोल्यूशंस हैं कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ये कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी कोई काम हो रहा हो और उसका फायदे अच्छे आ रहे हो, आपकी कंपनी ने उसको अडेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हर कंपनी, जिस तरह दो तरह की कंपनीज होती हैं, आपको पता है, या तो वो प्रोडक्ट सेल करती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब शॉप्स बंद हो जाती हैं जल्दी, शॉप्स का इशू, शॉप्स जल्दी बंद हो जाती हैं, तो डिजिटल, ऑग्यूमेंटेड, वर्चुअल, सेल्फ पेस, और ये क्या चीजें, ये डिस्ट्रीब्यूशन के तरीकाकार है। आज की दुकानें कभी भी किसी वक्त बंद नहीं होती। रात 3 बजे भी अगर आपको कोई चीज चाहिए
तो यू कैन ऑर्डर, ठीक है। दुनिया के किसी हिस्से में भी अब आपको जाकर कोई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपकी मोबाइल से एक्सेसिबल है, ठीक है, डिजिटली ऑगमेंटेड, वर्चुअल, ठीक है। कंसल्टिंग, कंसल्टिंग किसे कहते हैं कि आप स्पेशलाइज्ड लोगों को या तो हायर कर लो, ठीक है, या तो उनसे कंसल्टिंग ले लो, यानी उनसे उस चीज की जो आर्ट है वो सीख लो, ठीक है। कंसल्टिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अब आजकल जितनी बड़ी हाईटेक मशीनरी आ रही है, सब ऑपरेट हो रही है, कंप्यूटराइज ऑपरेशन हो रहे हैं सबके, कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप जब भी चाइना से, आपने आप में से वो लोग जो कि एक्सपो सेंटर जाते थे जब कोविड नहीं था, तो आप देखते हैं कि वहां पे एग्जीबिशन में चाइनीज बहुत ज्यादा नजर आएंगे आपको, पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं। जो कंपनी भी अपना स्टॉल लगाती है या अपनी मशीनरी को सेल कर रही होती है, वो अपने साथ कुछ इंजीनियर्स को रखती है, और मशीनरी करोड़ों रुपए में होती है, ठीक है। जब होता ही है कि जब आप वो मशीन खरीदते हैं, ठीक है, उसके साथ आपको कुछ इंजीनियर्स की सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमारी इंजीनियर हिरा आपके साथ रहेंगी, या इंजीनियर अनीस या इलियास या शारिक, ये लोग आपके साथ रहेंगे। इनका रहने का क्या मकसद है? इनका रहने का मकसद ये कि इनका फायदा ये है कि ये आपके लोकल जो आपके वर्कर्स हैं उनको सिखाएंगे, बिकॉज अगर वो सही से हैंडल, आप कोई भी मशीनरी ले लें, आप होम अप्लायंसेस कोई ले लें, जूसर ब्लेंडर ले लें, आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, मशीन जल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो आप ये किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं कि आपने करोड़ों रुपए की मशीन ले ली, लेकिन आपको उसको वर्कर्स को उसकी हैंडलिंग नहीं आती, ठीक है। तो आप उसकी हैंडलिंग के लिए इंजीनियर के साथ कंसल्ट करेंगे। बिजनेस की जो है ना वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी, कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी, इंटरसेक्शन। सबसे पहले आप हिकमत अमली बनाएं, स्ट्रैटेजी के उर्दू वर्ड है हिकमत अमली बनाएं, कंटिन्यूटी, और उसको कंटिन्यू कर रखें। हम अक्सर क्या करते हैं अपनी लाइफ के हवाले से भी प्लान करते हैं कि यार इस साल हमें, मेरी कम्युनिकेशन वीक है कि मुझे कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन का कोई कोर्स करना है, ओके। कॉन्टेक्स्ट सेक्चुअल, अच्छा, कॉन्टेक्स्ट सेक्चुअल का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को समझें और उस हवाले से चीजों को कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए। यानी कॉन्टेक्स्ट सेक्चुअल का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेशन करते हैं और चीजों को डिजिटली ट्रांसफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा जो है वो मैनुअल था, ठीक है, तो आप उसको कॉन्टेक्सचुअल का मतलब है सयाको सबाक, यानी प्रॉपरली उसी हिसाब से चीजों को लेके चले जिस तरीके से आपने लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब ये कोविड वाले मामला शुरू हुए, तो जब ऑनलाइन क्लास की बारी आई तो बहुत से लोग रिलेक्टेंट थे कि यार ऑनलाइन में हम पढ़ ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते चीजों को। लेकिन हमें जब लर्निंग करनी है तो हमें सयाको सबाक के में ही रहना है, यानी जो चीज जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है जी। अरहम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपने हैंड रेस किया है। अरहम हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, आगे चलते हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में सॉल्विंग प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू अप्रोचेस को एक्सपेरिमेंट करते हैं। लर्निंग फ्रॉम अदर्स, लर्निंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और अपने साथ जो कंपनी आप जैसा आपके कॉम्पिटिटर है उससे रिलेटेड चीजें हैं वो सीखते हैं। ट्रांसफर नॉलेज क्विकली, अच्छा, ये अगला पॉइंट है हमारा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपोज ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। आइए बात करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग से क्या मुराद है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब हर किस जो है वो मौसमी तब्दीली नहीं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है सोशियो कल्चर फोर्सेस, कि जब भी आप कोई कंपनी कोई डिसीजन ले तो सोसाइटी पे उसका क्या इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक फोर्सेस कौन सी हैं, टेक्नोलॉजी फोर्सेस कौन सी हैं, पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस कौन सी हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आप एक ऐसी कंपनी चलाएंगे जो कि फॉरेन बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वो हो हाई क्लास,
तो आपको सोशल कल्चर फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों की तालीम अभी उस हिसाब से नहीं है। इकोनॉमिक फोर्सेस का मतलब ये है कि आपकी कंपनी अगर स्ट्रेटेजी बनाती है कि हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी आपकी डाउन जा रही है, तो आपको वो बैकफायर कर जाएगी चीज। टेक्नोलॉजी फोर्सिंग की बात ये कि जब भी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, अगर आपकी कंपनी उसके मुताबिक अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगी, तो कंपनीज के जो इश्यूज हैं या जो बिजनेस हैं वो इफेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस, आपको पता है पाकिस्तान एक प्योर बहुत ज्यादा और पॉलिटिकल जो है वो कंपनीज है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी अलग हो जाती है। जैसे कि जब हमारी नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कहा कि हम इंसाफ देंगे, हम स्ट्रेटजी मतलब हमारी चेंज हो गई है, जो कम वो है करप्शन है उसे कम करना है। पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ था कि ग्रीन लाइन बनानी है तो व्हाइट लाइन बनानी है, इस तरह की चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। तो हर गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आपको आप ग्रुप्स एंड एनवायरनमेंट दैट डायरेक्टली इफेक्ट ऑन इफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, वो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके सही या गलत काम करने से आपकी कंपनी को नुकसान होगा। नंबर 1, आपके कॉम्पिटिटर। अगर आप कॉम्पिटिटर को इवेलुएट नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है। ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाता है। कॉम्पिटिटर को भी आपने सामने रखना है कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, क्या नई चीजें, किस चीज पर रिसर्च कर रहा है। कस्टमर्स की नीड एंड एक्सपेक्टेशन को आपने इवेलुएट करना है थ्रू फीडबैक, थ्रू कंप्लेन हैंडलिंग, थ्रू सर्वे। ये सप्लायर, देखिए आपकी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, आपके ऑपरेशंस का बहुत बड़ा हिस्सा आपके सप्लायर पे डिपेंड कर रहा होता है। सप्लायर के डिपेंड इसलिए कर रहा होता है कि अगर जिस कंपनी के सप्लायर्स अच्छे होते हैं, वो उस कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है। आज हम पेप्सी और कोक, अगर आप नॉर्दर्न एरिया चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपको कुछ मिले या ना मिले, आपको पेप्सी और कोक मिल जाएंगे, बिकॉज उसके सप्लायर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हैं। हर जगह जगह पे आपको आराम से वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर देते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग जो आपसे उधार में चीजें लेते हैं, अगर वो उधार में लेते रहेंगे और आपकी रिकवरी सही नहीं होगी, अल्टीमेटली कंपनी को फाइनेंशियल बूस्ट नहीं मिल पाएगा। शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली वो लोग जो कि आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते रहेंगे, आपकी कंपनी पॉजिटिव साइन नहीं देगी, अल्टीमेटली नुकसान का सबब बनेंगे। ट्रेड एसोसिएशन, आजकल आपने देखा होगा हर अंजुमन ताजरान, ठीक है, सिंध ताजिर इत्तेहाद, इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। बेसिकली ये ट्रेड यूनियंस होती हैं, और ट्रेड यूनियंस का मतलब ये है कि आप मिलकर ट्रेड के हवाले से जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न है, वो आप आगे पहुंचाते हैं। आगे किसको? गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड को, ठीक है, ताकि आपके इश्यूज आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ये सब ट्रेड एसोसिएशन है। एम्प्लॉयज एंड लेबर यूनियंस भी, अगर आपको पता है, दिन आप फिल्मों में भी देखते हैं कि लेबर यूनियंस जो है वो स्ट्राइक पे हैं, स्ट्राइक की हुई है, वो डाउन टाइम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उससे डायरेक्टली परफेक्ट इफेक्ट होता है आपके बिजनेस पे। कम्युनिटीज, ऑब्वियसली कम्युनिटीज कैसे इफेक्ट होती हैं गाइस? फॉर एग्जांपल आप एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी है और आप कोरंगी में काम कर रहे हैं, अपनी ऑपरेशंस कर रहे हैं आज से 50 साल से। 50 साल पहले या 30 साल पहले, इनफैक्ट कोरंगी की जो पॉपुलेशन थी, इतनी हाईली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन नहीं थी। आपने उस वक्त वो फैक्ट्री वहां पर स्टार्ट की, अब 30 साल के बाद वहां पर बहुत ज्यादा लोग रहने लगे। तो ये फैसला हुआ कि ये सामने देखा गया कि आपकी जो बिजनेस है, जो आपकी कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट, मतलब लोगों में बीमारियां हो रही हैं। और वैसे भी टेक्सटाइल कंपनीज और सीमेंट कंपनीज और ऑयल एंड गैस कंपनीज की अलाउ ही नहीं है हाईली पॉपुलेटेड एरिया में। तो आपने अपनी क्या करा, स्ट्रेटेजी बनाई कि यार जैसे जैसे अब मैं टाइम गुजर रहा है, मैं अपनी कंपनी को पैरेलल एक कंपनी में साइड एरिया में बना दूंगा या हाईवे के पास बना दूंगा, ताकि ताकि वहां पर पॉपुलेशन कम हो, कम्युनिटीज इफेक्ट ना हो। अब कम्युनिटीज की मिसाल क्या है? आपने देखा होगा कि वो सिविल, वो होती है सिविल एसोसिएशन, या क्या कहूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सिविल सोसाइटीज होती हैं जो हर चीज में आपको बताते, अब वो जो है वो स्ट्राइक करती हैं आपके अगेंस्ट, जो है वो
अखबारों में लिखती हैं कि फला कंपनी इतना ज़्यादा केमिकल वेस्ट पानी में डाल रही है, इससे लोगों को ये नुकसान पहुंच सकता है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में कंपनी का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी आती है। यानी अगर आपको कहा जाए कि आप किसी कंपनी का स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन की बेस पर जायजा लें, जो कि पेपर में आता है, आ भी सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसका विजन और मिशन बताएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, स्ट्रेटेजीज बताएंगे और पॉलिसी बताएंगे। ठीक है, विजन क्या है, व्हाट कंपनी प्रेजेंट सिचुएशन, कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वेयर डज द कंपनी नीड टू गो फ्रॉम हेयर, जाना कहाँ चाह रही है कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, बिजनेस टू बी इन मार्केट पोजिशन टू स्टेक आउट, बायर्स नीड एंड ग्रुप टू सर्व, डायरेक्शंस टू हेड। यानी ऑब्जेक्टिव्स आपके बता रहे होते हैं, स्पेसिफिक आपका क्या तरीका कार है। फॉर एग्जाम्पल हम सबका विजन है या मिशन है कि यार हम सब एमबीए कर लें या बीबीए कंप्लीट कर लें अच्छे नंबरों से। ऑब्जेक्टिव्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हर बीबीए और एमबीए तो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ हमें अच्छी जीपीए भी लेना है। दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को किस तरह आप वो करोगे अचीव, कि आप क्लासेस टाइम पे लोगे, ठीक है, आपने जो है वो असाइनमेंट बनाने हैं, क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी अप्रोच बिल्डिंग, लो कॉस्ट का, बहुत सारी कंपनीज अपनी कॉस्ट को मैनेज करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाती हैं, ठीक है। अब बिजनेस मॉडल एड्रेस क्वेश्चन, हाउ डू वी मेक मनी इन द बिजनेस। अच्छा, व्हाट इज बिजनेस मॉड्यूल, बिजनेस मॉड्यूल किसे कहते हैं। अब बिजनेस मॉड्यूल एड्रेस अ क्वेश्चन, हाउ डू वी मेक मनी इन दिस बिजनेस, के किसी भी बिजनेस से पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, दैट इज अ बिजनेस मॉड्यूल। टू द रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट इकोनॉमिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी मेक गुड बिजनेस, लाइक लुक एट रेवेन्यू स्ट्रीम, कि अगर आपकी कंपनी की अगर अप्रोच ये होगी कि भाई हर मैं एजुकेशन इदारा खोल रहा हूँ, मुझे इससे फायदा क्या होगा, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस मॉडल। ठीक है, आप आज छोटी सी एक ऑनलाइन स्टोर खोलें या कोई बड़ी कंपनी, अल्टीमेटली आपको बिजनेस मॉड्यूल बनाना होगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना होगा और प्रॉफिट मार्जिन की, यार मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। स्ट्रेटेजी वर्सेस बिजनेस मॉड्यूल डील्स विद कंपनीज कॉम्पिटिटिव इनिशिएटिव एंड बिजनेस अप्रोच। ठीक है, बिजनेस मॉड्यूल में कंसर्न वेदर द रेवेन्यू कॉस्ट फॉलोइंग flowing from strategy demonstration business can be ample profitable and valuable। हमारे मुल्क में बहुत सारी कंपनीज है जो बिजनेस मॉड्यूल को तो फॉलो करती हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजी में आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, ये तमाम चीजें करनी होंगी जो पीछे लिखी हैं ये वाली। एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी होगी, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करनी होगी, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी होगी, तमाम चीजें करनी होंगी आपने। तो जो मेन डिफरेंस है वो स्ट्रेटेजी और बिजनेस मॉड्यूल में, ये बिजनेस मॉड्यूल में आप बस ये फोकस कर रहे होंगे कि यार पैसा कितना जनरेट होगा, कितने पैसे आएंगे। अच्छा जी, अगर ये सेशन खत्म हो जाए तो आप ये मत समझिएगा क्लास खत्म हो गई, आप रीज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी ये बात कि स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस मॉड्यूल में कि स्ट्रेटेजी जो हमारी है वो हर चीज को सामने रखा जाता है, ठीक है, उसमें सक्सेस रेशियो ज्यादा है, ठीक है, उसमें सस्टेनेबिलिटी है किसी भी काम की, और उसमें एक इसे कहते हैं ना